कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और सीजीआई की तरफ से कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि यह सिर्फ कोलकाता का एक भयावह मामला नहीं है, यह देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है। महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए। सीजीआई ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो लेते हुए आज सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया था और अब सुनवाई जारी है और चीफ जस्टिस की कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आई हैं। सीजीआई ने कहा है कि हमने ये स्वतः संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता का एक भयावह मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश भर के डॉक्टर्स की सुरक्षा का मसला है। खास तौर पर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा और उनके वर्किंग आवर का मसला है और नर्सिंग स्टाफ। इस पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो और उन्हें संविधान में समानता मिली है। इन तमाम बातों का जिक्र सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की तरफ से किया गया। इस बात का जिक्र भी सुनवाई के दौरान किया जा रहा है कि ये केवल रेप भर का मसला नहीं है, चिंताजनक स्थिति है। पीड़िता का नाम सार्वजनिक हुआ, तस्वीरें दिखा दी गई। ऐसे में कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अलग अलग याचिकाएं भी हैं जिस पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। इस वक्त हो क्या रहा है, जरा एक नजर इस पर डाल। No, my lord, we have something. Inquest shows it's a case of murder, Murad. Inquest shows it's a case of murder. Inquest is done. The postmortem is, the autopsy is conducted. Yes. Now, until the 9th, no FIR indicating that this is a clear case of a murder has been made out. It has, Murad. I'm sorry. I'll place those facts before you. It has been, Murad. Lord, may I suggest? From Lord, may I unnatural death, suggest? he registered the case Lord, for murder. That, We caught the victim. He is a civic worker, Murad. It's an individual act. I show all that, Your Lordship. and that's the first aspect. Yes. What was the principal doing? Why did he not, why was this kind of inaction on the part first an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder? I'm sorry, Murad. That's not correct. Not recording, not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. Fourth, and that's a matter of very serious concern. On the next day, the doctors, because they were all doctors working with her, the doctors are on protest. A group of persons, a mob assembles at the hospital. The hospital is invaded and the critical facilities are damaged in the morning or whenever the mob enters. What was the police doing? Yes. Murad, we have videos for all. Murad, let me first of all state. Surely, Mr. Sibal, What? the police, Lord, a very serious offense has taken place. The crime scene is within the precincts of the hospital. Now, that is the first thing that the police have to do, namely to protect the crime scene. What are they doing? That's They allow vandals to enter the hospital. It's impossible that 7,000 people first can of all, gather without of all, the consent. Please, one second. allow me. Lord, This is- 7,000 people One can second. never gather without knowledge or consent of the police. This is not an adversarial litigation. It's not. Therefore, let us not be in denial mode. One girl has lost life One second. by not only, my lord, a sexual pervert, he's an animal. Sir, After the principal resigns from this medical college, he sent to another he's hospital. appointed as a principal of another college. He doesn't resign. But anyway, be that Murad, let me first. Conduct, at the least, his conduct is under scrutiny, and he's appointed as a principal somewhere else. This is all, we have a note on all this misinformation. Let's not contradict each other. There is a high court order. What is the reality? Just show it to you. Let them file the report, not But just show it to by the you. tomorrow. My lord. Couple of things which we would like Would be to do. there. Well, let's make it very clear. Yeah. We would want the investigation has been handed over to the CBI. Bureau of Investigation. Yes, done, yes, We want CBI to file a status report before this court on Thursday. correct. We will take up the case on Thursday. We want CBI to apprise. देखिए, us सुप्रीम on कोर्ट the की latest कार्यवाही की investigation. तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बहुत सख्त रुख
इस मामले को लेकर दिखाया है और उन्होंने सवाल पूछा है कि एफआईआर जो दर्ज की गई कोलकाता पुलिस की तरफ से, उसमें मर्डर की बात स्पष्ट क्यों नहीं लिखी गई, क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया। इतना बड़ा केस सामने आने के बाद इतनी बड़ी और जघन्य वारदात जहां पर हुई थी, उस क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया, परिवार को बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई। ये तमाम सवाल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से पूछे गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखने के लिए जाने माने वकील कपिल सिब्बल इस वक्त मौजूद हैं। उनकी तरफ से दलीलें अभी दी जानी बाकी हैं। वो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि उन्हें परमिशन दी जाए अपनी बात रखने के लिए। आरोपी जानवर था, पुलिस नाकाम रही। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है, सीजीआई के सामने आई है और साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की नाकामियों का जो पुलिंदा है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी, उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, बहुत सख्त रुख इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए सीजीआई की तरफ से आज कई अहम सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहला सवाल उठाया गया पूरी कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर, जिसमें साफ तौर पर सीजीआई की तरफ से कहा गया कि जो स्पॉट था उसको संरक्षित क्यों नहीं रखा गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो आरोपी है वो बिल्कुल जानवर की तरह से बर्ताव किया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि एक भयानक अपराध और क्राइम सीन को संरक्षित कर रखना चाहिए था। और साथ ही जो एफआईआर थी उसमें मर्डर का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया, यानी कि मर्डर की जो बात है वो स्पष्ट तौर पर नहीं बोली गई है। तो ये वो तमाम सवाल है जो आज सीजीआई की तरफ से उठाए गए हैं और कपिल सिब्बल को अपना जवाब देना अभी इस पूरे मामले में बाकी है। जी बिल्कुल, जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कोलकाता के डॉक्टर्स हैं वो भी इस कार्यवाही को देख रहे हैं। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी उनके साथ मौजूद हैं। कई अहम बातें कही गई हैं। सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हम सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने। सीजीआई ने कहा कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए जो देश भर के चिकित्सकों की सुरक्षा पर अपने सुझाव दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हम इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है और साथ ही साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाए जाने का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है और इस बीच हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र शर्मा और इसके अलावा कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अब तक का रुख रहा है, साफ है कि इस पूरे मामले पर कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त है, चाहती है कि इस मामले में टास्क फोर्स केवल बनाई ना जाए, लेकिन वो इस बात को सुनिश्चित करे जिस मांग को लेकर डॉक्टर सड़कों पर है वो पूरी हो। देखिए प्रतिमा, आपको समझना पड़ेगा कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डॉक्टरों में ही नहीं बल्कि आम जनता में भी पूरे देश में है और जिस तरह की घटना हुई है उसने सबको झकझोर के रखा है। उम्मीद जो है वो कहीं से किसी को नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार भी कई तरह के सांत्वना देने की कोशिश कर रही है, कई तरह की बातें कर रही है, लेकिन डॉक्टरों को उन पर भी यकीन नहीं है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, उस पर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की भूमिका है वह भूमिका कहीं ना कहीं उस तरीके से पॉजिटिव नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है तो उसमें आप ये भी देखिए कि तमाम तरह के डॉक्टर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी अपने आप को पार्टी बनाने की बात की है, जिसमें फोर्डा शामिल है, जिसमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन शामिल है और भी तमाम तरह के संगठन शामिल है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हमारी निगरानी में पूरी जांच होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल जरूर खड़े करता है और यह एक आश्वासन भी एक तरीके से है उन डॉक्टर्स कम्युनिटी को जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं बार बार कि जो ट्रायल है वो फेयर हो, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने जो कुछ भी किया उस पर किसी को भी थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। इसका एक पहलू ये भी है प्रतिमा, ये भी समझना पड़ेगा कि अविश्वास की वजह से देश के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर हैं और उसका असर मरीजों पर भी पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ भी कार्रवाई है, अगर उस कार्रवाई से थोड़ा सा भी विश्वास जगता है तो सबसे पहले तो डॉक्टर काम पे लौटेंगे जिससे कि देश के मरीजों का भला हो, और दूसरा वो विश्वास जगेगा कि जो ट्रायल है, जो जस्टिस है, जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं, इनको उम्मीद आएगी कि वो जस्टिस होगा। इन सब के बीच आपको एक डेवलपमेंट बताना चाहूंगा। मैं अभी सीबीआई हेडक्वार्टर पे हूं और अभी अभी
जो पूर्व प्रिंसिपल हैं वो सीबीआई दफ्तर यहाँ पे पहुंचे हैं और उनसे आज भी पूछताछ लगातार शुरू होने जानी है। दूसरी दो बात और जानकारी दे दूं, संभव है अब से थोड़ी देर बाद जो संजय रॉय है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उसका जो है राजीनामा लिया जाए और कोलकाता के ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में संभव है आज शाम में उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी शुरू हो जाए। प्रतिमा। ठीक है, बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ और सीबीआई दफ्तर पर ही आप इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है